Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tek Chandeshwar, All India Rank 7, UPSC Engineering Services 2018. Now we will start our next subject, which is the machines ka second part, which is machines 2. So it will be consisting of my transformer and my synchronous machines. Okay. First of all, let me have an introduction of the subject. मैंने as every time I have said to you that what is the purpose of studying electrical engineering. Electrical engineers का purpose क्या है? Just we have to generate the power and then we have to transmit the power from generation end to the load end transmission lines, and then we have to distribute the power. So it is the primary purpose of electrical engineering. Okay. Now for generation, we have our power plants where we use our synchronous generators or alternators. Fine. So synchronous generators or alternators are used in our power plant. Now transmission line, then distribution. Fine. Distribution में मेरा mostly my load is consumed in the motors. 70 to 80% load is consumed by motors. Transmission lines are used to transmit the power, and there is one thing, that is transformer, which is used at every stage of our power system. That is, from here generation is suppose at 11 kV and our transmission is at 220 kV to reduce the losses. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, देन आई हैव ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, वी विल सी देम. देन देयर विल ट्रांसफॉर्मर, देन further step down होगा. Okay, so transformers are used in every part of our power system. What is the purpose of transformer? Nothing but to transfer power from one voltage level to another voltage level. But what is constant in this process? Frequency is constant in this process. So what we do, we just generate the power, we transmit the power, and then we utilize the power. In between, my transformer is used at my generating end, transmission, okay, then distribution end, step down. Fine. So my transformer is useful everywhere. Synchronous machines are mainly, like if I say they are 100%, then that means 99% of synchronous machines are used in power plants as alternators. Rest 1% they may get used in the industries as a reactive war supplier. ओके, और इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर. वो क्या होता है हम सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी, मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. ठीक है, 1% सिर्फ इंडस्ट्री में, जो कि आप सिंपल कह सकते हो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए 1% इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, and rest are 99% used as alternators in our power plants to convert my mechanical energy into the electrical energy. Fine. Now in transformers, there are mainly 3 types: single phase, auto, 3-phase transformers. We will study all the transformers one by one. The principal operation will be more or less same. That is single phase transformer का जो होगा वही principal operation होगा मेरा सारे ट्रांसफॉर्मर्स का. ठीक है, नाउ इन माय फर्स्ट सेशन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल. ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी द सिलेबस वंस, यू कैन सी what we are going to study in this subject. Okay, I am Tek Chandeshwar. Single phase transformers, 3-phase, auto and synchronous machines, and the entire topics will be completed. And if you think there is something new or some new questions is being asked or new topics are added, inform me. I will also help you with that. Okay, so first of all, जब हमने DC machine start की थी, then I told you the definition of a machine which is capable of electromechanical energy conversion, which is capable of continuous electromechanical energy conversion, that is called machine.
तो उस सेंस में, अगर स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें तो मेरा ट्रांसफॉर्मर इज नॉट ए मशीन, क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल इन माय ट्रांसफॉर्मर. So if I strictly speaking, I say my transformer is not a machine, but the working principle of the transformer that it also works on Faraday's law of electromagnetic induction. इसी के बेस पे मेरी डीसी मशीन काम करती है, इसी के बेस पे मेरी लाइक इंडक्शन मशीन भी इसी के बेस पे काम करती है, सिंक्रोनस मशीन भी मेरी इसी के ऊपर काम करती है, एंड ट्रांसफॉर्मर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. प्लस वी रिक्वायर आवर ट्रांसफॉर्मर in every stage of our power system, like generation, transmission, distribution, utilization, at everywhere. Okay, that's why we study our transformer in machine. So now we came to know that transformer is, strictly speaking, transformer is not a machine, but it operates as a machine. That's why we study it in machines. Okay, so what is transformer? So you can read the definition. It is a static device, means there are no dynamic parts or no moving parts. Transfers same electrical power at same frequency at a different voltage level. That is, from one voltage level to another voltage level, one voltage level to another voltage level, the power will be same. That means there is no power gain. That's why we say transformer is also a passive device. It is not active because it do not provide any power gain. Okay, now one voltage level to another voltage level, it may be higher voltage level or lower voltage level. High वोल्टेज पे भी कर सकता है, लो वोल्टेज पे भी कर सकता है. लो पे करेगा तो स्टेप डाउन, हाई पे करेगा तो अप, और कभी कभी हमारा ट्रांसफॉर्मर सेम वोल्टेज लेवल पे भी करता है, एंड हियर वी कॉल इट एज 1:1 और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर. इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज और सम वर्कशॉप्स टू प्रिवेंट फ्रॉम करंट. जो वहां पे वर्किंग पर्सनल्स काम कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल current. This 1:1 isolation transformer is also used. It transfers power at the same voltage level. So same voltage level, step up, step down, 1:1. Okay. Now, what is a transformer? Transformer is nothing but there is a core. There is a core, and there two windings are wound on the core. ठीक है, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर. बाकी जो और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हम देखेंगे. बट इन सिंपल वर्ड्स, this is my transformer. So what is the function of this core? Why we are using this core? This is also a question. Because core में से फ्लो करता है मेरा फ्लक्स. जो मेरा प्राइमरी का फ्लक्स है वो कोर के थ्रू जाके सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करके मेरा आता है. ओके, सो द फंक्शंस ऑफ कोर टू प्रोवाइड ए पाथ ऑफ वेरी लो रिलक्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. पहला काम तो, अब हम वुड की कोर क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज वुड हैज वेरी वेरी हाई रिलक्टेंस. और जो इतना हाई रिलक्टेंस होता है, दैट मीन्स टू सेट अप माई वर्किंग फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है मेरा? MMF बाई रिलक्टेंस. तो मेरे को सेम फ्लक्स चाहिए, वर्किंग फ्लक्स. अगर मेरा रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, देन व्हाट इट मीन्स आई हैव टू इंक्रीज माई MMF ऑल्सो. दैट्स व्हाई वी यूज कोर विच इज हैविंग वेरी लेस रिलक्टेंस. और रिलक्टेंस क्या होता है मेरा? L अपॉन में म्यू ए. ओके, L बाई म्यू है. तो अगर मेरे को रिलक्टेंस अपना कम करना है, L और A को तो ये तो डिजाइन पैरामीटर है, जो डिजाइन करते कोर के वो डिजाइन हो गए. नाउ इफ आई यूज परमेबिलिटी वेरी हाई, देन माय रिलक्टेंस विल बी लो. सो कोई किसी भी कोर की, फॉर ए गुड कोर, द परमिएबिलिटी शुड बी वेरी वेरी हाई. ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ कोर? मैकेनिकली सपोर्ट एंड एकोमोडेट द वाइंडिंग. जो कोर है, ये वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. When my transformer operates, so इस कोर के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस भी पड़ता है, जिसकी वजह से हमिंग नॉइज आती है, हमिंग नॉइज और हिसिंग नॉइज. ठीक है, जब फील्ड चेंज होता है, सो हम ये भी देखेंगे, फील्ड चेंज होता है तो हिस्टेरिसिस लूप के अकॉर्डिंग मैग्नेटाइजेशन चेंज होता है. तो टू एंड फ्रो मीन्स हर साइकिल में मेरी कोर एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसमें मैकेनिकल फोर्स लगता है. तो मेरी कोर स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए, एंड सो दैट इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द वाइंडिंग. नाउ व्हाट विल बी एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर? जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, आइडियल मीन्स एक तो लॉस नहीं होना चाहिए. नो लॉसेस आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इंसुलेशन. मैकेनिकल लॉस तो ट्रांसफॉर्मर में
होंगे नहीं, बिकॉज दे आर नो रोटेटिंग पार्ट और दे आर नो मैकेनिकली मूवेबल पार्ट्स इन ए ट्रांसफॉर्मर। सेकंड, नो इलेक्ट्रिकल लॉस मीन्स वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए मेरा, 0। और नो इंसुलेशन लॉस मीन्स कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए करंट का। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। ओके, नाउ सेकंड इज इनफाइनाइट परमियाबिलिटी ऑफ द कोर। अगर मेरी कोर की परमियाबिलिटी इनफाइनाइट होती है तो उसका फायदा क्या है मेरा, इसकी हेल्प से मैं बिना किसी एक्साइटेशन करंट के अपना फ्लक्स एस्टेब्लिश कर सकता हूं इन द ट्रांसफॉर्मर। ओके, सी हाउ। रिलक्टेंस क्या होता है मेरा, सी, हाँ यहाँ पे देखिए एल अपॉन म्यू है, यहाँ पे रिलक्टेंस इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए। व्हाट इज माय फाइव फ्लक्स, फ्लक्स होता है मेरा एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, दैट इज एन इंटू में आई अपॉन में रिलक्टेंस क्या होता है मेरा, एल बाई म्यू ए। मैं यहाँ से आई निकालता हूँ अपना, तो 5 इंटू एल अपॉन में म्यू ए इंटू में एन। सो आई इज इक्वल टू 5 इंटू एल तो कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कोर इज कांस्टेंट, तो 5 अपॉन में म्यू इनटू सम कांस्टेंट के। दिस इज माय करंट आई दैट इज रिक्वायर्ड टू सेट अ फ्लक्स 5 if my permeability is infinite। तो यहाँ पे करंट रिक्वायर्ड कितना होगा, सपोज आई वांट टू क्रिएट अ फ्लक्स ऑफ 10, ठीक है, 10 वेबर का फ्लक्स मुझे चाहिए। आई वांट टू क्रिएट फ्लक्स ऑफ 10, मेरा म्यू कितना है, इनफाइनाइट। व्हाट विल बी माय आई, 0 एम्पियर। That means I have to supply 0 ampere current, excitation current 0 ampere to set up the working flux in the transformer. So no additional current required for the excitation purposes. And अगर mu infinite है तो reluctance क्या होगा मेरा, L by mu A। और mu infinite है reluctance हो गया मेरा 0। Okay, so अगर आपसे कोई भी पूछे ideal transformer characteristics, no losses and infinite permeability, these 2 points only summarize all your small points that are mentioned in various books, like it should have no primary losses, it should have no secondary losses, it should have no excitation current requirement, input power factor equals to output power factor, no mechanical loss, no insulation loss. All those properties of an ideal transformer are summarized in these 2 points, that is no losses and infinite permeability. Okay, now let's see the principle of operation of a ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है प्रिंसिपल ऑपरेशन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इट सेज, व्हेन ए कंडक्टर कट्स ए फ्लक्स और व्हेन ए फ्लक्स कट्स ए कंडक्टर, मींस एक कंडक्टर होना चाहिए और एक होना चाहिए मेरा फ्लक्स, और दोनों आपस में कट करें, देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। और ईएमएफ किस साइन का होगा, किस पोलैरिटी होगा, कौन बताएगा, लेंस लॉ। बाय लेंस लॉ विल डिटरमाइन दैट व्हाट विल बी द साइन और पोलैरिटी और डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, एंड लेंस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tries to oppose the main cause. Okay, it tries to oppose the main cause, that is, see in the diagram here, there is a flux phi. Now if this flux links this primary winding, or you can say this is secondary winding, if this flux links this secondary winding, अब फ्लक्स तो दोनों वाइंडिंग को लिंक करता है, then if any EMF is induced in the secondary winding, it will be induced in a way so that it tries to oppose the main flux. That means जिस फ्लक्स ने इस EMF को इंड्यूस किया, ये EMF उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये इस फ्लक्स को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे, इसके फ्लक्स के इफेक्ट को कम करे, रिड्यूस करे। ओके, दिस इज द लेंजिस लॉ, दैट मींस द EMF इंड्यूस्ड अपोजेस द कॉज। ठीक है, now think here a transformer, it is having primary winding having number of turns n1, ठीक है, there is a core है, core पे कुछ certain permeability है mu, length l, area of cross section, ये है मेरा area of cross section। ओके, now मैंने प्राइमरी वाइंडिंग ली n1 टर्न्स की और मैंने उसमें लगाया एक वोल्टेज V1, ठीक है। Now in this primary I applied a sinusoidal voltage V1, and this is very important question, so important concept, not a question.
Lenz's law. So we will do it separately, slowly and slowly, by making the one by one all the modifications in the circuit. Okay, this is my core, fine, and this is my winding. My winding will be like this. This is my winding, and I have applied a voltage plus point terminal here, minus this is my voltage V. Okay, so this is my sinusoidal voltage. जो मेरी सप्लाई वोल्टेज है वो है मेरी साइनसोइडल वोल्टेज. V इक्वल्स टू लाइक दिस, V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t. फाइन, ओमेगा t है मेरा, ये मेरा Vt. ओके, माय पीक वैल्यू इज Vm sin ओमेगा t. इसकी वेवफॉर्म तो हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हेन आई अप्लाई दिस वोल्टेज, सम करंट विल फ्लो इन द वाइंडिंग. कुछ करंट जाएगा, वेरी स्मॉल करंट, एक्साइटेशन करंट. अगर आइडियल ट्रांसफार्मर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, सपोज अगर मेरा ट्रांसफार्मर है आइडियल, तो उसका म्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, और एक्साइटेशन करंट क्या होगा, 0. जस्ट हमने 1 मिनट पहले ही देखा था. फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर माई परमिएबिलिटी इज इनफाइनाइट एंड माई एक्साइटेशन करंट रिक्वायर्ड इज 0 एम्पियर. ओके, तो मैंने मान लिया मेरा ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो बिना किसी करंट के मेरा फ्लक्स आ गया 5. जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ आइडियल है. ओके, नाउ इन दिस वाइंडिंग माई 5 फ्लक्स विल बी फ्लोइंग. ओके, अब 5 फ्लक्स फ्लो कर रहा है इस कोर में, और इस कोर के ऊपर वाइंडिंग है मेरी जिसमें टर्न है N1. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, अगर सपोज इन एनी ट्रांसफार्मर अगर मेरी ये वाइंडिंग है, अगर मैं इसी में करंट दे रहा हूँ, इसी वाइंडिंग में सपोज मैंने लगाया यहाँ पे वोल्टेज सोर्स V, मैंने इस वाइंडिंग में करंट दिया, करंट की वजह से क्या आया, MMF आया, Ni, और MMF से क्या आया मेरा फ्लक्स. नाउ दिस फ्लक्स विल फ्लो इन द कोर, और यही फ्लक्स मेरा अब इस प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगा. ओके, एक वाइंडिंग है, कोर है, उस कोर के अंदर 5 फ्लक्स फ्लो कर रहा है, और उस कोर पे वाइंडिंग है मेरी, तो ये फ्लक्स इस वाइंडिंग से लिंक करेगा. सपोज अगर मेरा ये ट्रांसफार्मर है, दिस इज माई प्राइमरी वाइंडिंग, और मैंने एक वाइंडिंग यहाँ पे भी लगाई, एक वाइंडिंग मैंने यहाँ पे भी लगाई, और एक वाइंडिंग मैंने यहाँ पे भी लगाई. ठीक है, अब मेरे कोर में फ्लक्स कितना फ्लो कर रहा है, 5. तो ये 5 फ्लक्स मेरा इस वाइंडिंग से भी लिंक करेगा, इस वाइंडिंग से भी लिंक करेगा, इस वाइंडिंग से भी लिंक करेगा, इस वाइंडिंग से भी लिंक करेगा. That means any flux flowing in the core will link all the windings that are wound on that core. तो इस प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स लिंक करेगा. नंबर ऑफ टर्न्स इज N1. व्हाट इज माय फ्लक्स लिंकेज, लैम्डा इज माय फ्लक्स लिंकेज. फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न. ठीक है, N1 इनटू 5. ओके, अब मेरा वोल्टेज मैंने साइनसोइडल लगाया, तो मेरा जो फ्लक्स सेटअप होगा वो भी मेरा साइनसोइडल सेटअप होगा. ओके, 5 इक्वल्स टू 5m sin ओमेगा. एक्चुअली मेरा अगर 5m sin ओमेगा t है, लेट सपोज मैंने Vm लगाया, बस मेरा V एक इंस्टेंटेनियस एक AC वेव फॉर्म है, और मुझे इसकी वेव फॉर्म नहीं पता V की. बस अभी तक मैंने क्या किया है, एक मेरा ट्रांसफार्मर है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, एंड देयर इज अ फ्लक्स इन दिस, एंड व्हाट इज माय फ्लक्स, फ्लक्स इज माय 5m sin ओमेगा t. ओके, नाउ व्हाट विल बी द फ्लक्स, मैं फ्लक्स को ड्रॉ करूंगा, तो दिस इज माय फ्लक्स, फ्लक्स इज माय 5m sin ओमेगा t. दिस इज माय फ्लक्स 5. ओके, इन ग्रीन. नाउ व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू N1 into 5, लैम्डा इक्वल टू N1 into में 5m sin ओमेगा t. रिमेंबर मैंने अपने फ्लक्स को मान लिया साइनसोइडल. अभी मुझे पता नहीं है कि मेरा वोल्टेज ये जो Vt है ये साइनसोइडल साइन है या कोस है, मुझे कुछ नहीं पता है. ठीक है, वो पहला केस था, इसमें बोल रहा था मैं V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t है, तो उसमें मेरा 5 आता 5m cos ओमेगा t, क्योंकि यहाँ पे मेरा वाइंडिंग एक्ट्स एज ए प्योर इंडक्टर, तो करंट मेरा लैग करेगा 90 डिग्री से. ठीक है, बस वो हम देखेंगे. अभी हमने माना है एक आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर में विदाउट एनी एक्साइटेशन फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जाएगा. आइडियल ट्रांसफार्मर मीन्स न्यू इन्फिनिटी, तो 0 एम्पियर एक्साइटेशन करंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप द वर्किंग फ्लक्स. नाउ मेरा लैम्डा आ गया. व्हाट विल बी माय EMF, EMF विल बी चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. और उसका साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय लेंज़ लॉ. इसका साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो बताएगा मेरा लेंज़ लॉ. सो इट विल बी, साइन में बाद में लगाऊंगा, पहले मैं d/dt ऑफ 5m sin ओमेगा t
सॉरी लैम्डा तो क्या है n1 इंटू फाइव एम साइन ओमेगा टी, इट विल बी n1 इंटू में फाइव एम इंटू में ओमेगा इंटू में कॉस ओमेगा टी। नाउ आई नीड कि मेरा यहाँ पे साइन क्या आएगा वो मुझे पता करना है। वो कहाँ से पता लगेगा? लेंस लॉ से। तो जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है इसकी पोलैरिटी मार्क करना इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट एनी पोलैरिटी, अगर मुझे वोल्टेज की पोलैरिटी नहीं पता है तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। इट इज सिमिलर टू लाइक दैट। तो इस वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे पता लगेगी मुझे? बाय यूजिंग लेंस लॉ। तो लेंस लॉ क्या होता है? एक बार हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं लेंस लॉ की। यू कैन रीड दिस। According to Lenz law, the direction of induced EMF is such that if it is allowed to cause a current by short circuiting the coil, then the current so produced would have an effect that will oppose the cause. That means जो मेरी वोल्टेज इंड्यूस होगी, अगर हम उससे एक करंट पास करेंगे कॉइल में, then that current will oppose the cause. Cause क्या है मेरा यहाँ पे? मेरी EMF इंड्यूस किसकी वजह से हुई है? मेरी EMF इंड्यूस हुई है this flux that is flowing in the core. तो अगर मेरी कोई भी वोल्टेज इंड्यूस होती है देन दैट विल अपोज दैट मेन फील्ड फ्लक्स फाई। ओके, तो मैं सर्किट बनाता हूं अपना। ये है मेरी एक कोर, ठीक है। इन दिस कोर माई फ्लक्स इज फाई। अब मेरा फ्लक्स कहां जा रहा है? ऊपर। नाउ यूज योर राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? अगर मेरा थंब करंट की डायरेक्शन है तो मेरी जो फिंगर्स कर्ल होंगी वो बताएंगी फील्ड की डायरेक्शन, और अगर मेरी फिंगर्स जो कर्ल हो रही है वो करंट की डायरेक्शन है तो मेरा थंब बताएगा फील्ड की डायरेक्शन। दैट इज माई राइट हैंड रूल। हमने इसे किया था, अपने डीसी मोटर से पढ़ी थी। ओके, नाउ सी, हियर इज माई प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग n1 number of turns. Now I have to find out that whether my voltage will be positive or negative, means what will be the polarity of the voltage induced. तो सपोज मैं अपनी वोल्टेज लेता हूं, मैं कंसीडर करता हूं कि ऊपर मेरा प्लस है माइनस एंड दिस इज माय वोल्टेज इंड्यूस्ड E1, ठीक है। अब मैं इसके बाद देखूंगा कि मैंने जो पोलैरिटी मार्क की है वो सही है। इफ दिस पोलैरिटी इज करेक्ट देन आई विल से E1 इक्वल टू डी लैम्डा बाई dt है। अगर मेरी पोलैरिटी जो मार्क करी है ये मेरी उल्टी आती है तो मैं कहूंगा E1 इक्वल टू माइनस का डी डेल्टा बाई dt है। ओके, सो लेंस लॉ क्या कहता है कि जो मेरी EMF इंड्यूस होगा, अगर मैं उस EMF से एक करंट को पास करूंगा सर्किट में, देन दैट करंट शुड अपोज द कॉज। और कॉज क्या मेरा? जो इस कोर में फ्लक्स फ्लो कर रहा है, कॉज। सो अगर मैंने प्लस ऊपर ले लिया माइनस नीचे, देन अगर मैं करंट पास करूंगा तो कैसे जाएगा मेरा करंट? लाइक दिस। मेरा ऐसे करंट पास करेगा, मीन्स लाइक दिस, लाइक दिस माई करंट विल पास। अगर अब इसमें आप राइट हैंड रूल लगा के फ्लक्स की डायरेक्शन देखोगे, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने की ये ट्राई करेगा करंट, दैट विल बी लाइक यू कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि आपने कोर को पकड़ लिया हो हाथ से, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो मेरा फील्ड की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड्स। दिस इज माई फाई 2। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये मेरा फ्लक्स आया है, इंड्यूस वाला फ्लक्स नीचे की तरफ, और मेरा मेन फील्ड फ्लक्स कहां था? ऊपर की तरफ। सो इट इज अपोजिंग। अगर मेरा अपोज कर रहा है दैट मीन्स मैंने साइन बिल्कुल सही लिया है, एंड माई EMF विल बी E1 इक्वल टू डी लैम्डा बाई dt, दैट विल बी n1 फाइव m इंटू ओमेगा इंटू में cos ओमेगा t प्लस। सपोज इन दिस सेम प्रॉब्लम अगर मैंने इसका साइन उल्टा कंसीडर किया होता तो क्या होता? लेट्स सी दैट ऑल्सो। बस मेरा होना है कि ये जो मेरा EMF इंड्यूस हुए, अगर उसकी वजह से मेरा करंट पास करता है वाइंडिंग में, देन दैट फ्लक्स शुड अपोज द मेन फ्लक्स। बस ये है। फ्लक्स ऐसे पास कर रहा है पहले, मेन फील्ड फ्लक्स, माय मेन फील्ड फ्लक्स इज फ्लोइंग लाइक दिस। ओके, सो अब मैं मान के चलो मैंने ले लिया माइनस प्लस एंड दिस इज माई E1, मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया है। ओके, अगर मैं अब इसको शॉर्ट सर्किट करके करंट को पास कराता हूं, मतलब ये वोल्टेज इंड्यूस हुई तो मैं अगर यहाँ पे कुछ लगाऊंगा तो करंट कैसे पास करेगा? ऐसे पास करेगा ना, ऐसे। ओके, सो अगर करंट ऐसे पास करता है तो लाइक दिस, देन करंट विल कम, देन करंट विल go like this, then current will come back like this, like this. So it is like this, it will be like this, this, and then current will come back. अगर आप इसमें अब राइट हैंड रूल लगाओगे,
आप अपने फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो मेरा फ्लक्स कहाँ आएगा, फ्लक्स विल बी अपवर्ड। नाउ यू कैन सी जो मेरा फ्लक्स इंड्यूस हुआ phi2 वो भी ऊपर की तरफ है, और जो मेरा मेन फील्ड फ्लक्स था वो भी ऊपर की तरफ ही था। दैट मीन्स इट इज नॉट अपोजिंग, इट इज सपोर्टिंग। दैट मीन्स जो मैंने E1 की पोलरिटी ली है वो मैंने डिफरेंट ले ली, सो आई हैव टू राइट E1 इक्वल्स टू माइनस का d लैम्डा बाई dt। नाउ इट विल बी माइनस का n1 phi m इंटू ओमेगा इंटू में cos ओमेगा t। ठीक है, बस इससे पोलरिटी का सब कुछ खेल है। जो मैंने यहाँ पे माइनस प्लस लिया है ना, दिस इज मेन। अच्छा, अगर मैंने नेटवर्क में आपको बताया था, नाउ देयर आर टू टर्मिनल्स, ठीक है, ये माइनस प्लस है, कितना पोटेंशियल है E1, ओके E1, और E1 क्या है मेरा, माइनस का n1 phi m इंटू में ओमेगा cos ओमेगा t, ये है मेरा E1, ओके। सपोज आई मेजर एन अनदर वोल्टेज इन दिस सर्किट ओनली एंड आई से माई वोल्टेज इज प्लस माइनस का E2, तो E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा आप बताओ। मैं डिफरेंट पोलरिटी पे मेजर कर रहा हूँ, दैट मीन्स E2 विल बी इक्वल टू माइनस का E1, तो क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू माइनस का E1, E1 डाल देते हैं, माइनस माइनस प्लस n1 phi m ओमेगा cos ओमेगा t। E2 कहाँ है मेरा, E2 की पोलरिटी देखो, प्लस ऊपर माइनस नीचे। इट इज सेम लाइक जैसे मैंने पहले केस में यहाँ पे E1 देखा था, वो भी इतना ही था, n1 phi m ओमेगा cos ओमेगा t, और ये भी मेरा इतना ही है। दैट मीन्स फर्स्ट यू सी द पोलरिटी, पहले आप एक पोलरिटी मार्क कर लो, एंड देन यू कैन सी कि अगर इस पोलरिटी से करंट मेरा ड्राइव होता है, इफ दैट अपोज द प्राइमरी फ्लक्स और द फ्लक्स दैट इज द कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ EMF, दैट इज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। ओके, मैं दो एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सपोज मेरा एक ट्रांसफॉर्मर है, वही सेम ट्रांसफॉर्मर है, ये उसकी है प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज माई प्राइमरी वाइंडिंग, फ्लक्स आया मेरा phi। सपोज नाउ देयर इज ए सेकेंडरी वाइंडिंग ऑल्सो, मेरी एक सेकेंडरी वाइंडिंग भी है, दैट इज लाइक दिस। अभी n1 n2 काउंट मत करना, सिर्फ हमें पोलरिटी बतानी है, ओके। दिस इज माई सेकेंडरी वाइंडिंग, मेरा मेन फील्ड फ्लक्स फ्लो कर रहा है phi इन दिस डायरेक्शन, ओके। नाउ मैं इसी का एक और लेता हूं, दोनों केस में करेंगे हम, ज्यादा बड़ी कोर बन गई, ओके, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज माई कोर, लाइक दिस। Suppose if I say plus minus E2, or here if I say plus minus E2, सॉरी E2 डैश कहते हैं इसको हम, ठीक है, हम इसको कहते हैं E2 डैश। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द पोलरिटी ऑफ E2 एंड E2 डैश, ठीक है। मेरा फ्लक्स phi है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, N2 है, एंड आई हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ E2 एंड E2 डैश नाउ, ठीक है। दोनों ट्रांसफॉर्मर में मेरा फ्लक्स जो फ्लो कर रहा है वो phi है, एंड phi इज माई phi m इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। नाउ पहले तो हम देखेंगे कि मेन फील्ड में कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है phi, सो व्हाट विल बी माई फ्लक्स लिंकेज इन द प्राइमरी, कितना होगा फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में phi, n2 इंटू में phi m साइन ओमेगा टी। अब ये फ्लक्स मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है। यू कैन सी वन थिंग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, या तो कंडक्टर फ्लक्स को कट करे या फिर फ्लक्स कंडक्टर को कट करे। इन दिस कंडीशन क्या हो रहा है, मेरा कंडक्टर फ्लक्स को कट कर रहा है या फ्लक्स कंडक्टर को कट कर रहा है, इसमें हो रहा है मेरा सेकंड वाला। मेरा जो फ्लक्स है, मेरा फ्लक्स है टाइम वेरिंग, जो मेरा फ्लक्स है दैट इज वेरिएबल विद टाइम, और मेरा जो कंडक्टर है वो है स्टैटिक। दैट इज व्हाई इन ट्रांसफॉर्मर वी कॉल स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि मेरा कंडक्टर स्टैटिक है बट मेरा फ्लक्स टाइम वेरिंग है, तो फ्लक्स मेरा कट कर रहा है कंडक्टर को, ओके। जब मेरा फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा तो मेरा EMF इंड्यूस होगा, ऐसा कौन कहता है, फैराडे। EMF इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई dt, लेकिन किस साइन का इंड्यूस होगा ये कौन बताएगा मेरे को,
लेंस लॉ, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं, प्लस माइनस डी बाई डी टी एन टू फाइव एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एन टू इंटू फाइव एम इंटू साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी से, तो क्या आएगा मेरा ओमेगा इंटू में कॉस ओमेगा टी। अब मुझे प्लस माइनस कौन बताएगा, लेंस लॉ। अब यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। दिस इज E2। अब मेरे लेंस लॉ में मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे कि प्लस ऊपर है माइनस नीचे, मैं इस तरह से अपना E2 लिखना चाहता हूँ, प्लस ऊपर माइनस नीचे। देन आई हैव टू सी कि साइन क्या आता है। अगर मैं प्लस माइनस से कहीं पे करंट ड्राइव करूंगा तो करंट कैसे जाएगा मेरा, लाइक दिस, करंट विल गो लाइक दिस, और पीछे से होके आएगा तो आगे इस डायरेक्शन में करंट जाएगा मेरा। सी, अब आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओगे आप तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, तो आपका थंब कहाँ पॉइंट करेगा, अपवर्ड। मेरा तो भाई अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, अपना अपना भी देख लो तुम, ठीक है। सो दिस इज माई फ्लक्स फाई टू जो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, मीन्स मेन फ्लक्स तो आ रहा था इस डायरेक्शन से नीचे की तरफ, बट जो अभी फ्लक्स बना है ये जा रहा है ऊपर, दैट मीन्स माई फाई टू इज अपोजिंग फाई, ठीक है। जो मेरा फ्लक्स और जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है दैट इज ट्राइंग टू अपोज द कॉज। कॉज क्या था मेरा, फ्लक्स फाई। इसका मतलब मैंने E2 बिल्कुल सही पोलैरिटी में मार्क किया, दैट मीन्स E2 विल बी प्लस N2 इंटू में फाइव एम इंटू में ओमेगा कॉस ओमेगा टी वोल्ट्स। E2 क्या, वोल्ट्स। सिमिलरली अब हम यही चीज यहाँ पे देखेंगे। अब मेरा मन किया कि मैं E2 को मेजर करूंगा माइनस प्लस, प्लस नीचे माइनस ऊपर, ठीक है। मेजर मैं कैसे भी कर सकता हूँ, ये मेरा E2 डैश है। पहली बात तो E2 डैश क्या होगा मेरा, प्लस माइनस कौन बताएगा, लेंस लॉ, डी लैम्डा टू बाई डी टी। फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू फ्लक्स क्या मेरा फाइव एम साइन ओमेगा टी। तो मेरा वही आएगा E2 डैश, तो मेरा आ जाएगा वही प्लस माइनस तो बताएगा लेंस लॉ N2 फाइव एम इंटू ओमेगा इंटू में कॉस ओमेगा टी। नाउ यू सी, अगर मेरा इसमें इंड्यूस होता है प्लस नीचे माइनस ऊपर, तो ये करंट किस डायरेक्शन में ड्राइव करेगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं शॉर्ट सर्किट करके पता करूं, then my current will be driven in this direction, so like this, ठीक है। I hope you are comfortable with the direction of current। ऊपर से करंट आया तो वाइंडिंग में यहाँ से गया ऊपर से, देन पीछे से घूम के आया, फिर यहाँ पे यहाँ से करंट आया, यहाँ से एंटर किया, पीछे से घूम के आया, फिर बाहर से एंटर किया, पीछे से घूम के आया, देन इट लाइक दिस। अगर यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाओगे, अगर आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाते हो तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन आएगी, फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, तो फ्लक्स आएगा मेरा डाउनवर्ड। दैट मीन्स माई जनरेटेड फ्लक्स और जो इंड्यूस हुआ ईएमएफ उससे जो फ्लक्स आएगा और जो मेन फ्लक्स है दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दैट मीन्स जो मैंने साइन लिया है वो मेरा उल्टा है, आई हैव टू करेक्ट इट। सो E2 डैश इक्वल टू माइनस का N2 फाइव एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो इन दिस वे वी यूज लेंस लॉ to mark the polarity of the voltage induced or the EMF induced in the secondary coil. I hope I am clear with this point. If you have any doubt, मैंने वैसे तो 3-4 एग्जाम्पल कराए हैं आपको, लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, you can ask me, I will clarify that, okay, in my next video. But for now मैं आपको एक बार क्विकली फिर से बता देता हूँ। मैंने पहले कंसिडर किया I have an ideal transformer। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब उसकी परमेबिलिटी कितनी है, इनफाइनाइट। परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो उसका मतलब टू एस्टेब्लिश फ्लक्स फाई इट विल टेक ओनली जीरो करंट। फिर मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे कोर में फ्लक्स कितना है, फाई इक्वल्स टू फाइव एम साइन ओमेगा टी। मैंने ये एज्यूम कर लिया। उसके बाद फिर मैंने निकाला फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स N1 इंटू में फाइव एम साइन ओमेगा टी। अब मुझे पता है कि जो मेरा फ्लक्स है इस कोर पे जितनी भी वाइंडिंग हो, लाइक मैंने यहाँ पे देखा था, अगर यहाँ पे भी वाइंडिंग है, यहाँ भी वाइंडिंग है, हियर इज ऑल्सो वन वाइंडिंग, हियर इज ऑल्सो वन वाइंडिंग, तो जितनी भी एक कोर के ऊपर वाइंडिंग है उन सबसे मेरा एक फ्लक्स लिंक करेगा। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में फ्लक्स। लैम्डा क्या है मेरा, N1 इंटू में फाइव एम इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, माई EMF इक्वल्स टू प्लस माइनस डी लैम्डा बाई डी टी। डी लैम्डा बाई डी टी किसको कहते हैं, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है, जब भी फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा EMF इंड्यूस होगा, और इन अदर वर्ड्स इफ माई कंडक्टर कट्स द फ्लक्स और द फ्लक्स कट्स द कंडक्टर एंड EMF विल बी इंड्यूस्ड। ओके, तो फैराडे ने बोल दिया कि डी लैम्डा बाई डी टी आएगा। साइन किससे आएगा मेरा, साइन विल बी बाई लेंस लॉ। और लेंस लॉ कैसे अप्लाई करना है वो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी, that according to Lenz law the direction of induced EMF is such that
the direction of induced EMF यानी कि E. It's such that if it's allowed to cause a current by short circuiting the coil, then the current so produced will oppose the main field flux or will oppose the cause. इस EMF को इंड्यूस करने के लिए cause क्या था मेरा, ये जो फ्लक्स फाई था यही मेरा cause था. So it will oppose that flux. Okay, it's a very very good concept. आपको ये आना चाहिए. उसके बाद मैंने फिर एग्जांपल लिया कि अगर मैं ऊपर प्लस लेता हूँ या नीचे माइनस लेता हूँ तो मेरा साइन क्या आएगा, प्लस. अगर मैं ऊपर माइनस ले लूँ नीचे प्लस ले लूँ, इसका मतलब मेरी डायरेक्शन होगी रिवर्स. तो ये करंट मेरा मेन फील्ड फ्लक्स यानी कॉज को सपोर्ट कर रहा था, तो ये मेरा लेंस लॉ का वायलेशन होगा. दैट्स व्हाई आई टुक ए साइन दैट वाज E1 इक्वल्स टू माइनस का d lambda by dt. I hope you got it. Then we also take the example of by taking a secondary coil कि मैं ऊपर प्लस लेता हूँ नीचे माइनस लेता हूँ तो साइन क्या आएगा, अगर मैं नीचे ऊपर माइनस लेता हूँ नीचे प्लस लेता हूँ तो साइन क्या आएगा. ओके, आई होप you got it. If you are in doubt, please tell us in comments. After this, we will find the expression of the E1, V2, and we will draw them as waveforms in our next class. So thank you for now. Please see this video, and if you have any doubt, ask us. It is very important concept and it will help you throughout your machines, and it is very important for examination also, plus very crucial for interviews.